Chartered Accountant from Pune. Today is the topic basic how to face the auditor and basic how to develop your personality. बहुत सारे लोग जो अकाउंटेंट रहता है जब भी ऑडिटर आता है तो दे आर फीलिंग फेयरनेस. What we suggest you should not fear as a accountant because you are doing your work and editor doing his work. So there is no question of fairness because the concept and logic of the audit is only checking the accounting done by others, because the accounting person and checking are the same person, the mistakes cannot be find out. So logically the maker and checker are both are different, then only the mistake will be find out. This is the purpose of the audit. So how the basic audit will start? The auditor making the audit planning and sending you the details. As an accountant, you should prepare all documents, means complete your sales entries, complete your purchase entries, complete your cash book entries, complete your bank reconciliations, complete your JV entries. You do all these basics. You keep all records properly. The auditor when come, his time will be saved. Keeping record properly is very important because when auditor come, if you are not filing is not keep properly date wise, it's a lot of time consuming. When we are article students, 6 महीने तो अपने को सिर्फ फाइलिंग कैसे करना चाहिए वो अपने को ट्रेनिंग में होता है. बहुत सारे लोग अभी फाइलिंग करना दे आर फीलिंग सम इन्फीरिटी वर्क, but actually it is a very important work. If you are done your filing properly before accounting, 50% of your accounting will be perfect. So as a accountant, you should be very properly maintain the files, then your account will be very perfect. In case of sales, you do all entries, check all sequences, check also tax collected is properly collected the tax. In case of purchase, you check while doing the entries whether EWA bill is attached with the bill, GRN is properly attached. As an accountant, because you are doing the accounting in real time, if you are done any mistakes, it is very difficult to find out. So quality and awareness and present of the accountant make the your accounting more quality. So as a accountant, we should develop our skill and do accounting properly. In case of cash, when your auditor coming, you check before that whether all cash in receipts and payments are entered properly, because there is a sometime negative cash balance due to because your proprietor, your partner or director, he is spending out of his pocket, but expenses is debited in your books of account. Sometime cash receipts, cash sales entry is not done in the books of accounts. This is the reasons your cash will be negative. So before auditor coming, you do all these entries and make the cash positives. बहुत सारे कैश का छोटे छोटे जो बिल्स रहते, कोई ट्रैवलिंग रहते, कन्वेंस रहते, पेट्रोल एक्सपेंसेस रहते, बहुत सारे एंट्रीज नहीं होता है. जब ऑडिटर आया तभी वो क्वेरी में आ जाते तो आप लोग एंट्री करते हैं. सो बिफोर कमिंग द ऑडिटर, you should check basic things whether our accounting is monthly completed. Make the comparison. Suppose आपका अप्रैल में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 5,000 रुपए, मई में दिखता है 1,000 रुपए, तो आप देख लो क्यों मई में एंट्री नहीं हुआ क्या. ऐसे सब चीजें आप एक बेसिक आपने चेक करके रखा तो जैसे ऑडिटर आया तो आपका बहुत सारे क्वेरीज उसमें कम हो जाता है. अभी जर्नल एंट्री में जो भी आपका प्रोविजंस रहते, टेलीफोन एक्सपेंस रहते,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रहते हैं, कुछ ईएसआई पीएफ का जेवीज रहते हैं, जो भी जेवी एंट्रीज है वो भी आपको बिफोर ऑडिटर आने से पहले सब आपको करके रखना है। दूसरा जो पार्ट आ गया टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस जो ऑडिट का मेन पर्पज रहता है, जो सीए इज द रिप्रेजेंटेटिव बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एसएससी, वी आर द इंडिपेंडेंट फॉर बोथ। सो टैक्स ऑडिट का पर्पज यही होता है, इट शुड नॉट बी लॉस्ट टू द गवर्नमेंट एंड इट शुड नॉट लॉस्ट टू द एसएससी आल्सो, वी टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ पर्सन्स। सो ये जो टैक्स कंप्लायंस पार्ट है आपको प्रॉपर इन टाइम पे भरना है। ईएसआई पीएफ टीडीएस जो भी आपका टैक्सेस रहता है, इनकम टैक्स, ये सब आपको प्रॉपर मंथ टू मंथ भरना है। ऑडिटर के लिए साल में ऑडिट टाइम में आपको एक सीट लगता है, उनको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका ड्यू डेट क्या है, डेटा पेमेंट क्या हुआ है, ये सब उनको एक एक्सेल सीट लगता है। आपने ईयर एंड होने के बाद आपने ये सीट बना के रखा, ईएसआई पीएफ का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का बाइफरकेशंस और ड्यू डेट एंड डेट ऑफ पेमेंट, ये सब आपने एक एक्सेल शीट बना के दिया तो ऑडिटर के लिए रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट करने में उनको आसान हो जाता है। टीडीएस का भी आपको सेक्शन वाइज डिटेल लगता है उधर 3CD फॉर्म में। ये 3CD फॉर्म्स क्या रहते हैं, एक ऑडिट रिपोर्ट रहते हैं, आपका पूरा एक क्लॉज बाय क्लॉज उसमें सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। दे आर आस्किंग द मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन फॉर द टैक्स कंप्लायंस पार्ट्स। सो उनका जो भी कंप्लायंस के लिए आपको बेसिक वर्क लगता है, तो आपने एज ए अकाउंटेंट ये सब बना के रखा तो ऑडिटर को दे दिया, तो वो काम आपको इजी हो जाता है और आपका काम भी फास्ट हो जाता है। अभी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया, जो एम्प्लॉय का पीएफ और ईएसआई रहता है वो टाइम पे पेमेंट होना बहुत जरूरी है। उनके लिए जो ड्यू डेट है, जो पीएफ में जो एक्ट में ड्यू डेट है 15 जो भी डेट है, वो डेट में एम्प्लॉय का तो एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पेमेंट होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका जो 3CD ऑडिट रिपोर्ट है उसको लिंक लगा दिया आपने, जैसे डेट और डेट ऑफ पेमेंट एंड ड्यू डेट डाल दिया तो उधर सपोज डिले हुआ तो आपका इनकम में ऐड होके उसके ऊपर आपको टैक्स का नोटिस आने को चालू हुआ। पहले 2 साल पहले ये लिंक नहीं था। उसके लिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ईएसआई जो भी एम्प्लॉय का है वो आपको पे करना है, इन टाइम पे करना है बिफोर जो भी ड्यू डेट्स है उसका। टीडीएस का भी आपको पार्टी वाइज और सेक्शन वाइज आपको डिटेल्स देना है, उससे ऑडिटर का काम इजी हो जाता है। अभी दूसरा आया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, सपोज आपका सिस्टर कंसर्न कंपनी है, ओनरशिप दोनों कंपनी का सेम है और कुछ सैलरी अपने घर का फैमिली लोगों के लिए आपने कुछ सैलरी दे रहे हैं, आपका भाई ब्रदर से, सिस्टर से, वाइफ है, जो भी अपनी सैलरी कंपनी से दे रहे, तो ये इसको रिलेटेड ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाता है। इसका भी अपने को ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भी सपोज एक एक्स कंपनी है, उनका ब्रदर का सैलरी 1 लाख रुपए दे देता है, उसमें बाकी कुछ कंडीशंस इनकम टैक्स में ऐसे है, जब आप सैलरी 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने सपोज बाहर मार्केट में काम किया तो उनको सैलरी 1 लाख रुपए मिलता है क्या, ये भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब स्क्रूटनी आता है तो ये एनालिसिस करता है। उसके लिए आप जो भी फैमिली मेंबर्स के लिए सैलरी जो भी देना है आपको, ब्रदर सिस्टर वाइफ, वो भी आपको देखना है उनका क्वालिफिकेशन क्या है। सपोज उन्होंने बीकॉम में इंजीनियर से, एमबीए है, उन्होंने जो भी मार्केट में उनको काम किया तो उनको सैलरी जितना मिलता है उतना ही सैलरी अपना कंपनी से भी देना है, नहीं तो वो अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन होता है। वो भी जो भी डिफरेंस रहते हैं वो भी, उसके ऊपर भी अपने को इनकम टैक्स का स्क्रूटनी आया तो टैक्स भरना पड़ता है। उसके लिए वन शुड टेक केयर वेल गिविंग द सैलरी, वॉट एवर एक्सपेंसेस, रेंट इन एक्सपेंसेस, जो भी आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रहते हैं वो रीजनेबलनेस होना चाहिए, वो मार्केट छोड़ के ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों को लॉजिक इसका पता नहीं रहता है, उसके लिए वन शुड टेक वेरी केयरफुल। लोन टेकन और रीपेड, आपने साल भर में जो भी आपने लोन बायर पार्टी से लिया और वापस रीपेमेंट किया, एक तो कैश में 20,000 से ज्यादा आप नहीं देना है और लेना भी नहीं है, इसको 100% पेनाल्टी है। इसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है, आपने लोन कैसे लिया हुआ है, कैसे आपने रीपेड किया हुआ है। सपोज आपने 20,000 से ज्यादा भी लोन लिया, अकाउंट पे ही चेक से लिया, अकाउंट पे ही लिया तो भी आपको क्रॉस क्रॉस प्लस अकाउंट पे ही चेक कैसे आपको लेना है, सिर्फ क्रॉस चेक भी नहीं चलता है अभी न्यू रूल के हिसाब से। उसके लिए क्रॉस प्लस अकाउंट पे ही चेक से आपने लोन लिया है क्या, आपने लोन दिया है क्या। अभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पेमेंट होता है, रिसीट होता है, दैट इज अलाउड इन द इनकम टैक्स, मीन आरटीजीएस होता है, एनईएफटी होते हैं, दैट इज अलाउड।
ये भी डिटेल अपने को विथ उनका पैन नंबर अपना ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ता है। एनी चेंज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एंड पार्टनर्स रेशियोज। लास्ट ईयर में कुछ आपका बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हुआ, कुछ पार्टनर्स चेंज हुआ, उनका रेशियो चेंज हुआ, वो भी अपने को इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अपने को देना पड़ता है। उसके लिए वो भी एक चार्ट अलग बना के अपने को देना है। डेप्रिसिएशन चार्ट, डेप्रिसिएशन चार्ट भी अपने को एज पर इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देना है। आपको वो भी चार्ट बनाना है। सपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रही तो आपको दोनों बनाना है, क्योंकि उसका डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ता है। टीडीएस आपको सेक्शन वाइज देना है। सपोज आपका रेंट टीडीएस है 1 लाख रुपए, तो उसका गवर्नमेंट ने क्रॉस चेक करता है आपने 10% प्रॉपर डिडक्ट किया क्या नहीं किया हुआ है। सपोज कमीशन रहे तो आपने 5% प्रॉपर भरा क्या नहीं भरा हुआ, इसका एक प्रॉपर उन्होंने एक कंसोलिडेशन फिगर लेता है। उससे आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के उनके लिए इजी हो जाता है। उन्होंने सीए से बहुत सारे डाटा कलेक्ट करके लेता है, उनका काम इजी हो जाता है। जैसे टीडीएस रिटर्न है, टीडीएस रिटर्न आपने टाइम पे भर रहे हैं क्या, नहीं भरा तो आपने कुछ इंटरेस्ट उसमें भरा क्या, पेनल्टी भरा क्या, ये सब डिटेल्स वो जो फॉर्म्स बनाया हुआ है, वो फॉर्म्स में सब उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑटोमेटिक उसमें मिल जाता है। उसके लिए ये सब कंप्लायंस अपने को करना बहुत जरूरी है। और उसमें अपने को ये भी देना है सेल्स, परचेज, स्टॉक, जीपी रेशियोज, एनपी रेशियो, कंज्यूमशन रेशियो, ये भी डिटेल अपने को टैक्स रिपोर्ट में देना पड़ते हैं। उसका भी एक एक्सेल शीट एज ए अकाउंटेंट आपको बनाना है। सपोज आपका जीपी रेशियो एनपी रेशियो में बहुत सारे वेरिएशन आया। सपोज लास्ट ईयर में आपका जीपी एनपी रेशियो 10% है, नेक्स्ट ईयर में आपका कुछ 5% हुआ, तो उधर कुछ जस्टिफिकेशन आपका नहीं रहा तो उधर आपको नोटिस आने का चांसेस रहता है। वो जस्टिफिकेशन रहा तो हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। उसके लिए आपको ये भी ध्यान में देखना अपना वेरिएशन हुआ तो व्हाट इज द रीजन वाई देयर इज ए वेरिएशन। सपोज आपने कुछ इनकम टैक्स का डिमांड आया, जीएसटी का डिमांड आया, वैट का डिमांड है, अभी भी कुछ एक्साइज का डिमांड आया, वो भी अपने को डिस्क्लोज करना पड़ते। कुछ रिफंड आया उसका भी अपने को ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करना पड़ते। वो भी एज ए अकाउंटेंट आपको एक फाइल सेपरेट बनाना है। अपना जो भी कंपनी रिलेटेड नोटिस आया हुआ है, जो डिमांड नोटिस आया, जो भी रिफंड का अपना असेसमेंट्स हुआ, उसके लिए एक प्रॉपर फाइल बना के ऑडिटर के लिए रखना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटेटिव डिटेल्स। बहुत सारे कंपनी क्वांटिटेटिव डिटेल्स नहीं मेंटेन करता है। 31 मार्च को अपने को जो स्टॉक लगता है वो क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी अपने को इनकम टैक्स रिपोर्ट में डालना पड़ता है। उसके लिए कंपनी क्वांटिटेटिव डिटेल्स विथ वैल्यू मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो उधर आपका रिमार्क आ जाते हैं आपने क्वांटिटेटिव डिटेल मेंटेन नहीं किया बोल के। उसके लिए आपकी क्वांटिटेटिव डिटेल मेंटेन 31 मार्च का जो भी आपका स्टॉक रहते हैं वो भी आपको मेंटेन करना है। एनी कैश सेल्स मोर देन 2 लाख रुपीज फ्रॉम सिंगल ट्रांजेक्शन, ये अभी नया हो गया 1-2 साल से। आपका जो भी कस्टमर से आपका जो कैश आता है, सपोज अपने डीलर है, नहीं तो आपने कुछ बिल्डर है, आपका कैश मोर देन 2 लाख से आपने ज्यादा पैसे लिया हुआ है, तो वो भी आपको ये डिस्क्लोजर अभी विथ पैन नंबर देना बहुत जरूरी हो गया। और वो क्रॉस चेक हो जाते जो भी कस्टमर अपने को 2 लाख से ज्यादा दिया, उनका पैन नंबर से वो लिंक करके जो कस्टमर कैश दिया उनका सोर्सेस के लिए इनकम टैक्स नोटिस जाने का चांसेस है उसमें। और दूसरा आया 43B। 43B क्या रहता है, जो भी अपना प्रोविजन एज ऑन 31 मार्च 2020 को अपना जो टैक्सेस रहते हैं, मीन्स जीएसटी रहता है, पीएफ, ईएसआई, टीडीएस, पीटी, इनकम टैक्स, जो भी रहते हैं प्रोविजंस, वो अपने को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अपने को पे करना पड़ते हैं। नहीं तो वो अपना कुछ टैक्सेस जो रहता है जीएसटी वो अपने ग्रॉस मेथड फॉलो करना रहे तो फिर आपका इनकम में ऐड हो जाता है। उसके लिए आपको ये देखना है जो भी 43B का जो प्रोविजंस है अपना टैक्सेस, उसका एक चलन का एक फाइल अलग बनाना है। और उसका नरेशन में भी आपको डेट डालना है। सपोज अपने जीएसटी पेबल अपना 2 लाख 31 मार्च 2020 को दिख रहा है, आपको उसका नीचे एक नरेशन में लिखना है वो जो 2 लाख है वो कब पेमेंट हुआ, अप्रैल में सो एंड सो डेट पे हुआ, और उसका चलन नंबर सो एंड सो। वो क्या होता है ऑडिटर के लिए इजी हो जाते हैं, तो ऑडिट करते टाइम पे अपना टाइम बच जाता है। चैप्टर वाइज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। अभी आपको जो 6 चैप्टर में जो डिडक्शंस रहते हैं, 80C रहते हैं, 80D, 80E, जो भी अपना डिडक्शंस रहते हैं प्रोपरेटर के लिए और बाकी लोगों के लिए कुछ 80G का भी डिडक्शंस मिलता है। उसके लिए आपको ये भी सब रिसीट्स और जो भी अपना पॉलिसीज का डिटेल्स है वो सब आपको एक फाइल में अलग करना, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इमीडिएटली चेक करके फाइल आप हम लोग रिपोर्ट में भर सकते हैं। ये हो गया अपना बेसिक हाउ टू फेस योर ऑडिटर्स। हम लोग नेक्स्ट जाएंगे बेसिक हाउ टू डेवलप अवर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए अकाउंटेंट इधर बहुत सारे ओनर्स लोग भी है, उनके लिए जस्ट इट इज फॉर नॉलेज सेक। दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज फॉर अकाउंटेंट मोस्टली, दिस इज फॉर हाउ टू डेवलप देयर पर्सनालिटी, इट इज ओनली बेसिक्स।
सो एज ए अकाउंटेंट आपको क्या क्या करना है, जब भी हम लोग ऑडिट के लिए जाता है तो उधर हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, अभी ये ऐसे एंट्री क्यों हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ। तो उनका सबसे बेस्ट आंसर ऐसा रहता है, ये सर ये मैंने नहीं किया, पहले वाला अकाउंटेंट ने किया हुआ है। ये सबसे 95% लोग यही आंसर देता है। वो गलत किया तो क्या हुआ, आपका भी ड्यूटी है आपको उसको रेक्टिफाई करना, आपने ज्वाइन हुआ तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। ये जो आंसर्स रहते हैं ये नेगेटिव आंसर्स रहते हैं, मीन्स बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर पोस्टपोनिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आदमी आगे जाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं तो आपका करियर भी आगे अच्छा तरफ से होता है। इसके लिए ये आपको ध्यान देना है, जो भी मिस्टेक्स पहले का हुआ उसको रेक्टिफाई करके लेना है, उसको बराबर करके आपको प्रॉपर ये करना है। एज ए अकाउंटेंट आपका क्या क्या स्किल होना चाहिए, सबसे फर्स्ट है अडोप्टेबिलिटी। ये जो अडोप्टेबिलिटी है ये नॉट ओनली फॉर अकाउंटेंट, इट इज फॉर एवरीवन, इवन फॉर बिजनेसमैन, इवन एज ए प्रोफेशन फॉर अस द अडोप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वट एवर वी लर्न previously the changes is going very slow. In our case our sir, when we are doing the articles they are only reading the budgets, एक बार उन्होंने बजट में अपडेट हुआ साल भर में उसको उनका बुक ओपन करने की जरूरत नहीं था, उन्होंने कुछ अपडेट आता ही नहीं था तो पढ़ने का जरूरत नहीं आता था। बट इन नाउ आवर प्रोफेशन आल्सो एवरी डे नोटिफिकेशन सर्कुलर वी हैव टू अपडेट अवर सेल्फ। अकाउंटेंट लोगों को भी अपडेट होना बहुत जरूरी है, बिजनेसमैन को भी अपडेट होना बहुत जरूरी है। वैसे अभी मैंने अराउंड 30 लोगों का, मैंने अभी लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं सर मेरा मोबाइल पे जूम इंस्टॉल होता नहीं है, मेरे को पता नहीं है कैसे जो ज्वाइन होना है, मेरा नेट नहीं चलता है, ये बहुत सारे जो रीजंस रहते हैं, तो यू आर लूजिंग योर अपॉर्चुनिटीज। उसके लिए आपका जो भी नया स्किल आता है उसको अडॉप्ट करके नया नया टेक्नोलॉजी आपको सीख के आगे जाना बहुत जरूरी है। जो भी अभी जीएसटी का फॉर्म्स है वो एवरी डे दे आर चेंजिंग, आपके पास ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का भी स्किल चाहिए। आप आईटी पर्सन नहीं है, बट जो भी अपने को बेसिक लगता है, जो भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, ये सब अपने को फास्ट अडॉप्ट करना, एक नॉलेज अपने पास होना चाहिए, इससे आपका ग्रोथ होता है। और दूसरा स्किल आपके पास क्या होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। बहुत सारे अकाउंटेंट लोग जो भी मिस्टेक्स हो तो हाइड करना चाहते थे, हाइड नहीं होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। अभी जो आपको कुछ समझ में नहीं आया, यू हैव टू आस्क द क्वेरीज टू योर सीएस, यू कैन कॉल एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज टू सीनियर्स, आपका जो भी सीनियर्स रहते हैं उनको आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आपने जो अकाउंटिंग करता है वो रियल टाइम में होता रहता है, जैसे आपने उसमें गलती किया उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग आपको इसका सजेशन दिया ऐसे रहता है कि जो भी आपने अकाउंटिंग करते टाइम में जो भी आपको डाउट आए तो आप इमीडिएट पूछ के अकाउंटिंग कर दीजिए। सपोज आपने मिस्टेक्स कर दिया तो वो ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। उसके लिए अपना जो भी ओपननेस होना चाहिए, अपने को जो भी डाउट आया तो पूछना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, उसके बाद अपना अकाउंटिंग किया तो अपना ज्यादा अकाउंटिंग परफेक्ट होगा और उसका क्वालिटी भी अपना अकाउंटिंग का बढ़ जाएगा। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जो भी अभी सपोज अपना सीनियर जो भी अकाउंट मैनेजर्स रहते हैं उनके पास एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, एक लीडरशिप स्किल होना चाहिए। उनके अंडर जो भी अकाउंटेंट लोग काम कर रहे हैं उनसे काम कैसे करके लेना चाहिए। अभी हम लोग एवरी मंथ 2-3 तारीख को हम लोग ड्यू डेट का चार्ट भेज देता है, तो आप वो ड्यू डेट का जो चार्ट है वो प्रिंट आउट निकल के आपके सामने लगाना चाहिए। वो जो भी ड्यू डेट चार्ट का कंप्लायंस है रेगुलर होना चाहिए, उसका कंपनी को जो पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पेनल्टी फाइन इंटरेस्ट हम लोग अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है वो लॉस है कंपनी के लिए, ना आपका फायदा ना ओनर के लिए फायदा होता है। उसके लिए एज ए अकाउंटेंट, एज ए अकाउंट मैनेजर आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उसके लिए रखा हो रहा है, तो आपने प्रॉपर एक प्लानिंग करके स्ट्रेटजी करके ये सब आपका जो भी अंडर काम करने वाला रहते हैं उनका इन टाइम पे गाइडेंस देके उनसे अकाउंटिंग करके अपना इन टाइम पे सब कंप्लायंस होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज, अभी हम लोग ऐसे बात हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अभी हमें जूम, अभी बात किया जूम, किसी लोगों को कैसे इंस्टॉल करना, कैसे एंटर करना, ये सब चीजें अभी जो भी टेक्नोलॉजी नया नया आ जाते तो आपको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका ग्रोथ ये हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जब आपका लर्निंग स्टॉप हो जाए तो आपका ग्रोथ स्टॉप होता है। उसके लिए ये जो लर्निंग है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है सबके लिए। जो भी लर्निंग आपका स्टॉप होता है तो आपका ग्रोथ भी स्टॉप होता है। अभी फॉर एग्जांपल अभी आपको एक्सेल एक्सेल में आपको मास्टर होना चाहिए, क्योंकि अपना जो अकाउंटिंग का काम है बहुत डे टू जो एक्टिविटीज होता है वो सब अपना एक्सेल में होता है। बहुत सारे लोगों को एक्सेल आता नहीं है, तो यू टेक एनी क्लासेस, ज्वाइन एनी कोर्सेज फॉर एक्सेल। ऐसे जो भी अपने के लिए एडिशनल स्किल के लिए नॉलेज लगता है तो आपने क्लास ज्वाइन करके आप नॉलेज ले सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग टैली हार्डली दे आर यूजिंग 10%,
उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज है। स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं आप, उसमें एचआर का भी डिटेल्स, आपने पेरोल मेंटेन कर सकते हैं, और टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, लोन का इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, जीएसटीआर का जेसन फाइल ऑटोमेटिक होता है। ये बहुत सारे जो फैसिलिटी दिया हुआ है, वो आपको हर एक उसका जो टेक्नोलॉजी अपने लिए लगता है, उसका 100% अपने को यूटिलाइज करना आना चाहिए, तो भी आपका काम बहुत फास्ट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो चल रहे हैं चलने दो, नया नया सीखने का ईगरनेस नहीं रहता है। उसके लिए हम लोग आपको सजेस्ट देंगे, एज ए अकाउंटेंट यू शुड बी वेरी अपडेटेड अकाउंटेंट। जो भी अभी नया नया टेक्नोलॉजी आता है, नया अपडेट्स आते हैं, कुछ इनकम टैक्स का अपडेट्स आता है, कुछ जीएसटी का अपडेट्स आता है, अभी मार्केट में क्या हो रहा है अभी अपना सब ये ध्यान लेना बहुत जरूरी है। पहले का अकाउंटेंट और अभी का जो प्रेजेंट अकाउंटेंट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी इज वेरी हाई। पहले अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट था उनका सेल परचेज अकाउंटिंग हुआ बस, बट अभी एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट का क्या बढ़ा, एज ए अकाउंटेंट एज ए अकाउंट मैनेजर आप रहा तो उनको एक एमआईएस रिपोर्ट देना चाहिए, उनका मंथली प्रॉफिट कितना हो रहा है वो होना चाहिए। सपोज उनका 10 साइट चल रहा है, तो उनका 10 साइट का क्या क्या प्रॉफिट है, कितना कॉस्ट है, कौन सा साइट लॉस में चल रहा है, कौन सा साइट अपना प्रॉफिट में चल रहा है। ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये जैसे ब्रेन जैसे ही है, जो ब्रेन जैसे काम करते ऐसे अपना अकाउंट डिपार्टमेंट्स काम होता है। सभी डिपार्टमेंट को ये लिंक रहते, बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लिंक रहते, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लिंक रहते, ईच एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लिंक रहते। ये जो फाइनेंस जो है, इट इज वन वन ऑफ द ब्रेन ऑफ द योर बिजनेस। इसके लिए आपको एज ए अकाउंट्स मैनेजर ये सब देखना है, सब जो भी डिपार्टमेंट्स है वो एफिशिएंटली प्रॉपरली काम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, आप अकाउंट में बैठ के काम कर सकते। अभी टैली में भी अभी बहुत सारे फैसिलिटी आ रहे हैं, आप क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग भी अभी आ रहे हैं, आप मोबाइल में भी आपका सब अकाउंटिंग देख सकते हैं। जैसे अभी क्विक बुक है, वो सबसे क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग है, बट वो ज्यादा अपना इंडियन अकाउंटिंग को ज्यादा उतना सक्सेस नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स है। जैसे टैली यूजर फ्रेंडली है, वैसे ऐसे क्लाउड क्लाउड अकाउंटिंग क्विक बुक का एक ही एडवांटेज है, वो आप किधर से भी बिल जनरेट कर सकते हैं। वो एडवांटेज छोड़ के वो बाकी आपका बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट होता है, वो एक उसमें एडवांटेजेस है। बट टैली में भी अभी बहुत सारे अपग्रेडेशन आ रहे हैं, बट जो भी अभी प्रेजेंट फ्यूचर से वो भी आपने काफी अंडरस्टैंड करके लिया, आपका ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। कम्युनिकेशन स्किल ये सभी लोगों को चाहिए, नॉट ओनली अकाउंटेंट, द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कम्युनिकेशंस मेक योर लाइफ टोटली चेंज्ड। जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है वो प्रेजेंट नहीं कर सकते। आपने बहुत होशियार है, यू आर वेरी ब्रिलियंट, यू आर वेरी गुड इन योर वर्क, बट इफ योर कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट गुड, तो आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं कर सकते, तो आप उसमें फेल हो जाते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है, प्रॉपर आपका कस्टमर से कम्युनिकेशन करना है, आपका सप्लायर से कम्युनिकेशन करना है, आपका ऑडिटर से कम्युनिकेशन करना है, आपका ओनर से कम्युनिकेशन करना है। आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज नॉट ए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वॉट एवर लैंग्वेज यू टॉक यू शुड बी वेरी क्लियर एंड इट शुड बी टच टू योर हार्ट। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सेस योर करियर। सो आपको कम्युनिकेशन बहुत ये रहना बहुत जरूरी है, स्ट्रांग रहना। बहुत सारे लोगों को क्वेरीज रहते हैं, फोन नहीं करता है, ईमेल को प्रॉपर रिप्लाई नहीं देता है, व्हाट्सएप मैसेज देखता है बट रिप्लाई नहीं देता है, ये सब बैड कम्युनिकेशन होता है। उसके लिए आपको कोई कॉल किया रहे तो उसका रिप्लाई नहीं देता है, ये बहुत सारे जो चीज होता है, ये जो कम्युनिकेशन लैकिंग होता है। जब आप एज ए अकाउंटेंट आपका कम्युनिकेशन स्किल लैकिंग है, तो आपका करियर भी उसी हिसाब से ग्रोथ होता है। उसके लिए हर एक आदमी का कम्युनिकेशन आज की इसमें कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको एक मेल आ जाते हैं तो इमीडिएट उसको रिप्लाई होना चाहिए, व्हाट्सएप में आपको मैसेज आता है तो आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई होना चाहिए। और कभी डिपार्टमेंट से नोटिस आया रहते, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप डिपार्टमेंट से नोटिस आया रहते तो उसको टाइम बाउंडिंग रहते, इतना दिन में आपका रिप्लाई देना ही चाहिए। सपोज आपने एज ए सीनियर अकाउंटेंट वो कम्युनिकेशन अपने ना सीए ना ओनर को अपने कम्युनिकेशन नहीं किया, मेल पे आया हुआ, इससे बहुत बड़ा आपको पेनल्टी फाइन बैठ सकते हैं। उसके लिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए अकाउंटेंट आपको कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी को एक क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपना बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को सर ये एरर आ रहे, ये अपलोड हो रहे नहीं, ये जो अपना जो माइंडसेट रहते उसको एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करके छोड़ देने का। अभी जैसे अपने हमने स्टडी किया, बाकी हर एक लिए एक एक टारगेट रहता है। अभी मार्केट लोगों लोगों के लिए अपना टर्नओवर महीने में इतना 2 करोड़ बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी एक टारगेट रहता है। बट ये अकाउंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आप टारगेट नहीं दे सकते। सर 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है बोल के आपने दिन भर आपका टाइम उसमें टाइम वेस्ट कर सकते, बट ये किसी को समझ में भी नहीं आते आपने क्या कर रहे हैं। उसके लिए आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से जगह पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको कुछ दिक्कत आ रहा है तो आपको सीनियर को पूछना चाहिए, सीए लोगों को आप ये करना चाहिए उसमें
इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, अभी 2-2 घंटा 3-3 घंटा आप टाइम वेस्ट करते रहते सर, बैंक रिकन्सिलिएशन टैली नहीं हो रहा है, तो टैली नहीं हुआ तो आप छोड़ दो, बाकी दूसरा मंथ का आप स्टार्ट कर सकते हो ओपनिंग डिफरेंस रख के। ये जो आपने प्लानिंग कर सकते काम पे, ये बहुत सारे कम लोगों के पास एटीट्यूड्स रहते हैं। नहीं तो सर बैंक मैच नहीं हो रहे तो दिन भर आप टाइम उसमें वेस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स एंड योर सीएस टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। कस्टमर सर्विस स्किल, कस्टमर सर्विस के लिए ये तो मार्केटिंग लोगों का काम रहते, तो भी एज ए अकाउंटेंट अकाउंट मैनेजर, जैसे अभी मैंने बताया, अपना जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के लिए लिंक है। आपका जो भी कस्टमर्स है, उनका जो भी रिकवरी है, पैसे नहीं आ रहे तो आपको उनको फॉलोअप रख के उनका पैसे वसूल करना भी काम आपका अकाउंट डिपार्टमेंट का होता है। और कुछ क्रेडिट नोट्स है, उसका भी प्रॉपर इशू करके सामने वालों का लेजर्स कंफर्मेशन लेके आपका जो रिलेशंस बनाना है ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के साथ में, आपका रिलेशंस अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्री नॉलेज भी आपको होना बहुत जरूरी है। मीन्स आपका कंपनी का कस्टमर कौन है, आपका सप्लायर्स कौन है, आपका डे टू डे एक्टिविटी क्या है, आपका ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या होता है रोज, ये सब अकाउंट डिपार्टमेंट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट कुछ भी कर सकते बैठ के, उनको सब समझ में आ जाते बाकी डिपार्टमेंट में क्या काम कर रहे हैं। आपने एक अकाउंटिंग में आपने देख लिया, टैली में हर एक डिपार्टमेंट का ही आपको जो भी हिसाब किताब आपको इधर मिल जाता है। उसके लिए एज ए अकाउंट्स मैनेजर आप इधर बैठ के आप सब कंट्रोल कर सकते हैं, किधर किधर अपना लीकेज हो रहे, किधर अपना प्रॉब्लम्स है अकाउंटिंग सिस्टम में, किधर प्रॉब्लम्स है, अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या लीकेजेस हो रहे हैं, अपना स्टॉक डिपार्टमेंट में क्या लीकेजेस हो रहे हैं, अपना परचेज में क्या क्या अपना मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो रहे, उधर कुछ अपना गड़बड़ हो रहे क्या, सिर्फ बिल आ रहे मटेरियल नहीं आ रहे, ऐसे कुछ अपने कुछ अपना अकाउंट्स में परचेज डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ हो रहे क्या। ये सब चीजें हम बैठ के, कंज्यूमशन रेशियो अपना बढ़ रहे क्या, अपना स्टैंडर्ड कंज्यूमशन रेशियोज कितना है, और जो रेशियोज हो रहे, वो सब चीजें आप अकाउंट डिपार्टमेंट्स बैठ के काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली दिस इज द एटीट्यूड्स ऑफ योर हाउ यू ग्रोइंग। आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे को संबंध नहीं है, ये मेरा मेरा इतना ही मेरा काम है। जो आप ज्यादा से ज्यादा काम करना सीख लो। ये ज्यादा से ज्यादा काम के ऊपर मेरे को एक स्टोरी याद आता है। एक राजा रहता है, उनका बोट पेंटिंग करने के लिए पेंटर को देता है। वो पेंटर ने बोट को पूरा पेंट करके रखता है, राजा बाहर गांव गया रहता है, वो वापस आके देखता है तो उधर बोट नहीं रहता है। पेंटिंग तो हुआ रहता है बट बोट उधर नहीं रहता है। तो राजा एकदम टेंशन में आ जाते हैं, मेरा अभी एक्चुअली उसमें 2 होल रहता है। वो पेंटर को उन्होंने राजा ने नहीं बताया रहते क्योंकि उनका काम नहीं है वो बोला रहते सिर्फ आप पेंटिंग करके रखो। बट वो आने से पहले उनका बेटा वो बोट लेके समुद्र में घूमने के लिए जाता है। तो आने के बाद उनको टेंशन आ जाता है, अभी तो उधर 2 होल था, अभी तो ये बोट सिंक हो जाएगा तो पूरा पानी अंदर आ जाएगा, मेरा बेटा भी वापस नहीं आएगा। उतना टेंशन में उधर रुकता है। तो उनको एक दूर से एक बोट आने का दिखता है। वो नजदीक जैसे जैसे आते हैं तो उनका बेटा और उनका ही बोट दिखता है। तो राजा ने एकदम खुश हो जाते हैं, ये तो 2 होल था तो भी पानी अंदर कैसे नहीं गया, मेरा बेटा कैसे सेफ आ गया। तो उन्होंने पेंटर को बुला लेते हैं, उनको पूछता है, पेंटर तुमने ऐसे कौन सा पेंट लगाया जो पानी अंदर नहीं आ सकता है। तो पेंटर ने बताता है सर, राजा मैंने जो 2 होल था उसको 2 नेल मार के उसके ऊपर पेंट लगा दिया मैंने, वो इतना ही काम कर दिया। तो राजा ने इतना खुश हो गया, आपका 2 नेल के लिए मेरा आज बेटा का मेरा जान बच गया। आपने जो एक्स्ट्रा काम किया आपके उसके लिए आपको जो इनाम चाहिए मैं बोल दो, मैं दे देता हूँ। उसके लिए कभी भी लाइफ में अपने को एक्स्ट्रा काम करना सीखना चाहिए। उससे आपको रिवार्ड्स मिल रहे क्या नहीं मिल रहे, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो अपना अकाउंट्स में भी ऐसा ही है। आप अकाउंट बोले तो सिर्फ अकाउंटेंट बन के मत रहो। आप अकाउंटेंट से अकाउंट ऑफिसर अकाउंट मैनेजर रीच कर सकते हैं आप। सिर्फ आपका एटीट्यूड चेंज करो, आपका माइंडसेट चेंज करो। आप अच्छा काम करना चालू किया तो आपका पूरा करियर भी अच्छा होगा, और कंपनी के लिए भी अच्छा होगा, ओनर के लिए भी डेवलपमेंट होगा। आप डे टू डे एक्टिविटी में किधर आप अपना कॉस्ट कम कर सकते, अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते, ये सब चीजें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग 7 दिन का जो वेबिनार्स लिया हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों को बेसिक बहुत सारे चीजें अंडरस्टैंड हुआ है। हम लोग जो भी टॉपिक कंप्लीट किया वो सब बेसिक था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कवर नहीं कर सकते ड्यू टू टाइम कंस्टेंट। आपका जो भी हम लोग 7 डे का वेबिनार किया हुआ है, हम लोग आपको लिंक भेज देंगे। सभी लिंक एक बार अपने ओपन करके यूट्यूब का अपना चैनल चैनल से आएगा आपको, आप उसको सब्सक्राइब करके आप उसका देख सकते हैं।
और जो भी आपका क्वेरीज रहते हैं आप हम लोगों को कॉल कर सकते, मेल कर सकते। कीप इन टच दोज हु आर न्यू वन। अपना अकाउंटेंट लोग तो टच में रहते हैं, इसमें बहुत सारे नया लोग भी हैं और बहुत सारे लोग मिस किया हुआ है। मेरे को फोन आ गया अभी 30-40 लोग तो मिस हुआ है ड्यू टू देयर जूम इंस्टॉलेशन। मैंने आइडिया यूज करता है सर, मेरा वोडाफोन है, रेंज का प्रॉब्लम से वन वन ऑब्जर्व आइडिया और वोडाफोन जिसका है उनका कनेक्ट नहीं हुआ है। जो जियो है उनका मोस्टली कनेक्ट हुआ है। उसके लिए आपका जो भी लॉकडाउन पीरियड और 31st तक है आप उसका प्रॉपर यूज करो। आई होप टिल डेट यू आल्सो यूज्ड प्रॉपरली। आपका हेल्थ में कंसंट्रेट करो, नॉलेज बढ़ा दो, आपका नया नया बुक पढ़ो। अच्छा, आपका जो भी टाइम है उसका वेस्ट मत करो, ऐसे टाइम आपका लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। अभी मैंने तो बहुत सारे टाइम प्रॉपर यूज किया, अभी ऑलमोस्ट मेरा बुक अभी पब्लिश हो जाएगा, नो योर बैलेंस शीट। वो भी एक बार पब्लिश होने के बाद सब लोग एक बार पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एंटरप्रेनर और वो अकाउंटेंट दोनों के लिए बहुत यूजफुल है, वो बहुत सारे आपको हेल्पफुल होगा। बाकी कुछ क्वेरी रहे तो आप पूछ सकते हैं, अभी अपना 2 मिनट टाइम है। यू कैन raise the hand, we'll allow you to speak if you have any queries. Anyone want to talk, you can raise the hand, we will allow you to speak. If you have no any queries, if you have queries, you can send the mail to us or WhatsApp and call me anytime. Just a minute. Hello, have any queries? Yes, sir. Yes, मेरे को please. पूछना था सर। Yeah, सर आपने सर मेरे को पूछना था आपके पास please loudly unmute yourself. Hello. हेलो। Yes, या सर गुड इवनिंग सर। good evening. सर मेरे को पूछना था ये 7 दिनों में आपने बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको दिया, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हाँ, दैट। इसके अलावा सर मेरे को जानना था कि आपके पास ऐसे कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज है जो जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल के बारे में ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया हुआ है। हेलो। सो उनका कहना है सर आप एक नया कोर्सेस ले लीजिए, उसके ऊपर भी अभी अपना काम चालू है। हम लोग अभी हाँ सर। अपना क्लासेस में भी हम लोग 3 मॉडल करने वाला है, मीन्स एक बेसिक और मीडियम और एक ओके एडवांस बोल के। जब भी वो क्लासेस चालू हो जाएगा हम लोग आपको उसका ओके बारे में सर। डिटेल दे देंगे हम लोग आपको। ओके सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक या थैंक यू, सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सर मुझे ये पूछने का है, आप जो लिंक भेज रहे हैं हाँ। उसमें आपका जो अभी हमने जो आपका वॉइस सुना वो आने वाला है या ये शीट्स आने वाले हैं या सर दोनों भी आने वाला है? स्टार्टिंग में 1-2 दिन में रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है वो प्रॉपर, वो सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग हुआ ओके, बाद में। बाकी सब आपको जो अभी हो रहा है वही आपको मिल जाएगा। और कुछ हमने मतलब इंग्लिश आपका में भी, वॉइस हाँ वही सेम रहेगा, और इंग्लिश में भी हम लोग कुछ वॉइस बनाया भी हुआ है। आएगा? हाँ, हाँ सर। वॉइस भी आएगा और ये शीट्स भी आएगा मतलब यस यस बाकी वाला डेज में? यस सर, सीट भी आ जाएगा आपके लिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक हाँ, यू सर, थैंक यू। और अच्छा हो गया है, लोगों का मतलब नॉलेज में बढ़ोतरी हो गया है एक्चुअल में। ओके, थैंक यू फॉर दैट। या thank you very much sir. Thank you for all joining यस, and giving valuable time, and keep in touch and increase your knowledge of rest of the lockdown period. Don't waste your time, because this is the very good opportunity for learning us. तो जो भी टाइम है वो प्रॉपर यूज करो। मॉर्निंग टाइम आप एक्सरसाइज के लिए यूज करो, और बाकी टाइम अपने स्टडी के लिए यूज करो। एंड विश यू ऑल दी बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, एंड थैंक यू वेरी मच, and have a good day. Thank you.